आपको, जैसे मैं बम्बई से आता हूँ, बम्बई में रिक्शा वालों का तो आपने शायद सुना होगा, कोई ना बोल दे आपको नहीं जाएंगे तो आपको उसको गाली देने का मन करता है, आपको कुछ दो चीज़ बोलने का मन करता है, तो आप वो बदला ले रहे हैं. Anybody who harms you in any small way, you want to try and avenge it. आप कुछ ना कुछ तरीके से बदला लेंगे. आप भले ही उसको मारे ना, लेकिन आप उसको कुछ बोलेंगे, आप कुछ करेंगे. तो वो तो हुआ आए दिन बदला लेने की बात. But when it comes to dealing with a loss, and when it comes to the choice between avenging your loss and being the larger person, how many of us can actually do this? The next awardee is very special, especially because of this, because we've heard stories about people who've saved other people's lives. What you're now going to hear is you losing someone and yet wanting to save other people's lives, save the lives of people who possibly caused you harm. And so that brings me to the next award that we are going to give to Naushad Ali, who is the brother of Abdul Bashir, and I want to invite Humaira to talk about Abdul Bashir Saab's story, and then we invite Naushad Saab. And on the same day, in retaliation, miscreants assaulted Abdul Bashir, a hotelier, when he was closing down his fast food joint around 10 p.m. They targeted him mindlessly, and this fueled the atmosphere of the town in Bangalore. Despite this great loss, Bashir's grief-stricken family and friends did everything to ensure that the death does not trigger violence in the communally charged Bangalore district and other parts of coastal Karnataka. The family members categorically told politicians and organizations not to politicize Bashir's death. When Bashir's body reached Akash Bhavan, which has always been known for communal harmony, the whole area mourned his death, and Hindus outnumbered Muslims. The police department hailed this gesture of Bashir's family in ensuring that things did not go out of control. I would like to invite Naushad Ali Sahab to take this up. I'd like to call upon Nagesh Kutubu to please present the award to Naushad Ali. It survived in the remarkable grace of his family, people like Naushad, who refused to answer loss with revenge. Their response enlarged his legacy, transforming personal tragedy into a lasting testament to compassion, strength, and moral clarity, which is why we are honored to have Naushad Saab today to represent the legacy of his brother Abdul Bashir Saab. Thank you, Naushad Saab. Thank you. As most of you all know, I'm in the business of creating fictional heroes. So, very rarely one gets an opportunity to stand amongst real heroes. So, I'm truly humbled and also charged that it gives me hope and some level of belief that love can triumph hate. Thank you. Thank you so much, Nagesh. Thank you. Unfortunately, the killers of Abdul Bashir did not know that Abdul Bashir was a man who, when he was in the Gulf, had saved the life of a Hindu man there. He was a man who didn't care who the person next to him was. And उस mindless violence में आपके भाई की death हो जाती है. फिर भी आप लोगों ने वो संयम रखा, आपने बदले की भावना को आगे नहीं बढ़ाया. आप अगर चाहते तो कितने सारे लोग आपके घर के बाहर जमा थे, कितने सारे लोग रास्ते पर जमा थे. सबको बदला चाहिए था, सबको गुस्सा था. कैसे आपको सूझा कि नहीं, हम इस मोमेंट में हम शांति का, अमन का और संयम का मैसेज देंगे. क्या हुआ उस समय? अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्ते. मैं कर्नाटक से हूँ. मैंगलोर के एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक
उधर अलग अलग मॉल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक मॉल का डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, क्योंकि एक हिंदू का कत्ल होता है उस टाइम पे मुसलमान का भी कत्ल होता है, फिर हिंदू का कत्ल होता है, फिर मुसलमान का कत्ल होता है। जो 3 तारीख को फरवरी 2018 को जो दीपक राव बोल के बीजेपी कार्यकर्ता को खत्म हुआ था दोपहर को 2 बजे समथिंग, उसी टाइम से सबको पता है खत्म होएगा बोल के सबको मालूम है, 2 कम्युनिटी को भी मालूम है। जैसे ही सब लोग क्या कर रहे थे बोले तो खत्म होएगा बोल के जो किसको मालूम है वो लोग उनका काम छोड़ के सब जल्दी में जाता है, घर पहुंच जाता है। लेकिन मेरे भाई ने क्या किया बोले तो उन्हें 25 साल गल्फ में था, उसका जिंदगी पूरा गल्फ में गुजारा। जो उन्हें गांव में आके एक 6 महीने के बाद एक होटल खोलने के लिए ऐसा ये सब वो उसका इंतज़ार हुआ, सब खोल लिया। एक होटल चल रहा था, जो उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम है लेकिन खत्म हुआ बोल के मालूम नहीं था, लेकिन वो वहाँ का माहौल उतना उसको मालूम नहीं था। लेकिन वो सोचा था अगर 25 साल में मैं गल्फ में था, उसके साथ हिंदू भाई भी था, उनका रूम में साथ में था, एक ही साथ में जो उनका घर का आसपास में सब हिंदू लोग भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, सब लोग एक ही साथ में, लेकिन उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको मालूम नहीं था मेरे तरफ से मेरा ख़त्म करने के लिए आएगा, बल्कि वो उनको भी मालूम नहीं था। तकरीबन 10 बजे आसपास में उसको भी ख़त्म करता है। जो हम लोग को भी सब लोग हम लोग पहुँच गया, लेकिन उसको बाजू में एक उसको स्क्रैप का दुकान वाला भी उसके साथ ही, वो भी गल्फ में था, वो भी गांव में सेटल हो गए। उन्हें भी उसको बोल दिया। उन्हें दूसरा दिन हम लोग को बताया था आप थोड़ा जल्दी निकलो आज बोल के। उनके मन में आया होगा मैंने क्या किया, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भी नहीं गया, फिर किसी से भी नहीं गलत भी किया नहीं, वैसा सोचा होगा उन्हें। मैं गलत में था, किसी को भी मेरे बारे में मालूम नहीं वैसा सोचा। लेकिन उसको ख़त्म होने के बाद हम लोग को दूसरे दिन, नहीं तो मतलब 1 हफ्ता छोड़ के ऐसा पुलिस वाला ऐसा बताया, क्यों हमारा भाई को ही ढूंढ के कैसे आया है लोग। जैसे उन लोग ढूंढ के मतलब दोपहर से उन लोग ढूंढ रहा था, उनका एक टीम वैसे ही उन लोग ढूंढने के लिए निकाला सब जगह पर निकाल के सब लोग मतलब एक अंधेरे होने से सब लोग जो दुकान चला रहा तो सब फूल की दुकान, सब फल की दुकान लोग सब लोग निकल गए, सब जल्दी में निकल गए। इनका तो उस तो होटल का धंधा ही चल रहा है, मतलब एक 5 बजे के बाद एक 10 बजे तक, नहीं तो 11 बजे तक, वही टाइम पे धंधा चल रहा है। उन्हें रूम पे ही होटल में ही बैठा है, कैश में बैठता है। जैसे उसको देखने में भी वैसे एक मुसलमान का एक चेहरा भी वैसे, एक टोपी डालता है, दाढ़ी रख के भी उसको एक चेहरा भी है। वो उनको लास्ट में एक फ़ोन कॉल आता है, कोई भी उनको मतलब फ़ोन कॉल कहाँ से आता है बोले तो जो जेल के अंदर उनको साथी लोग बैठता है, वो जेल के अंदर से उनको फ़ोन कॉल आता है। इस तरफ एक जगह है, उधर होटल में एक 11 बजे तक रहता है, कोई भी नहीं मिलेगा तो उसको ख़त्म कर दो। जो पुलिस वाला मेरे को बताया, क्यों मेरा भाई का ख़त्म किया बोलेगा तो कोई भी नहीं मिलेगा तो उसको ख़त्म कर दो, हमको बदला चाहिए। तो बदले में उनको किया, मेरा भाई को ख़त्म कर रहा है। जैसे जैसे कर रहा है बोले तो 3 बाइक में 7 आदमी आया, 3 बाइक में 7 आदमी आया, 4 आदमी हथियार पकड़ के, क्योंकि ये इतना मैं जैसा देखा हो, जैसे क्यों बता रहे बोले तो उधर एक कैमरा था, सामने एक दुकान का कैमरा, ये लोग वो अंदर से वो लोग उधर खाना भी खाया, जैसे होटल में वो लोग रात को उनका खाना भी खाया। उनको बिल देने के टाइम में उनको हथियार निकालने के लिए, मारने के लिए घर के दुकान होटल के अंदर से घूम के फिर बाहर आए। उनका बॉडी भी क्या है बोले, थोड़ा हाइट भी है, ज़्यादा हाइट भी है, उसका बॉडी थोड़ा मतलब एक ज़बरदस्त उसका बॉडी भी था। वो फिर उनका कत्ल सर पे उनको कत्ल किया, मार दिया।
वो गिरने रोड पे गिरने लगा। उनको वो जो हम कैमरा में देख रहे हैं वो लोग 4 लोग भी चारों तरफ से सिर्फ उसको सर पे और पेट को ही कम से कम 50 के ऊपर वो लोग ऐसे मार रहे हैं, क्योंकि वो मारने के बाद भी वो जिंदा था, वो मरा नहीं, उनका बॉडी उतना कैपेसिटी था, उनका बच रहा था। हम लोग सोचे उनका बचेंगे बोल के हम लोग सोचा था। वो रोड पे ही गिर रहा था। उन लोगों को मतलब उतना क्यों मारा पड़ा तो पुलिस वालों से भी वो भी जानकार किया, लेकिन उनका जो हथियार था वो उस टाइम पे उनका हथियार सही नहीं मिला। वो हथियार का शार्प नहीं था, पुराना हथियार होएगा मेरे ख्याल से। वो इसलिए उसको वो जाना ही चाहिए बोल के उसको उतना मार रहा है वो लोग, क्योंकि हमारा को दूसरे दिन मीडिया में टीवी में सब आ रहा है, जो मीडिया वाला को कैसे भी उसका वीडियो मिलता है। तो उस रात को उस टाइम पे वो लोग निकल गए, उनका को काम करने के बाद वो लोग निकल गए। 3 बाइक भी दिख रहे हैं, एक बाइक में 3 आदमी, बाकी बाइक में सब 2-2 आदमी आया। तो बाइक में वो लोग निकल गए। जो जाने के टाइम ही वही वो लोग बदला हुआ बोल के वो लोग जोर से भी चिल्लाता है, बदले में हमारा बदला हुआ बोल के जोर से चिल्ला के भाग जाता है। लेकिन उस रास्ते में उनका जो गांव वाला का नज़दीक एक एम्बुलेंस को, उनका पास एक 4-5 एम्बुलेंस चलाता है, उसका पास 4-5 एम्बुलेंस है। वो रास्ते में उसको एम्बुलेंस घर का जाने के टाइम में सब लोग हिम्मत नहीं हुआ कि इसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाने बोल के, किसी को भी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस वाले को क्या थोड़ा हिम्मत है, क्योंकि एक्सीडेंट केस वो सब देखते हैं। इसके मालूम भी पड़ा इसको कत्ल किया, बल्कि इसको भी पहचान भी है, मेरे साथ मेरा घर का पड़ोसी है बोल के पहचान भी किया। इसको सबको बुला के एम्बुलेंस में डाल के नज़दीक में कोई एजी हॉस्पिटल था, एजी हॉस्पिटल में भर्ती किया। लेकिन 3 दिन उसको जान नहीं निकल गया, जान था। हम लोग डॉक्टर के पास भी बात कर रहा था, फैमिली जब भी कुणाल साहब ने बताया था वहाँ की माहौल कैसे रहता है बोलेगा तो एक बार जान गए तो हिंदू का भी हो, लेकिन नहीं होना चाहिए जान, किसी का भी जान है, किसी की भी जान नहीं चाहना चाहिए। जो एक हिंदू का भी जान गया तो सबको खुशी पड़ता है, सब इकट्ठा होता है। मीडिया में क्या बात करते हैं, जो उनको क्या चाहिए, नहीं ऊपर आना है बोल के मीडिया में बात करके सबको, बच्चों लोग को सब, उन लोग भी इकट्ठा हुआ एक तरफ से। दूसरा दिन उनका बॉडी जा रहा था, जाने के टाइम में वो लोग बहुत नुकसान किए। जाने के टाइम में रोड पे पत्थर वो सब मार के उसका बॉडी को लेके गया। फिर भी पुलिस वालों थोड़ा ठीक ठाक किया था, लेकिन इसका बड़ा बेटा और छोटा बेटा भी गल्फ पे था उसी टाइम पे। दूसरे दिन उसका बड़ा बेटा पहुंच गया। तभी हम लोग सब, हमारा आदमी भी सब फैमिली गांव में सब इकट्ठा हुआ, हॉस्पिटल में उतना इकट्ठा हुआ रहे, क्योंकि पुलिस वाले उधर भी पूरे बस डाल के, गांव में भी आदमी है, मस्जिद की तरफ आदमी है, सब हॉस्पिटल में सब आदमी इकट्ठा हुआ, जाता है आता है तो ऐसे ही हो रहता है। उनका जान नहीं निकल गया, क्योंकि 3 दिन हॉस्पिटल में। उसका बेटा आया, बेटा भी देख लिया, तो बेटा को ऐसा सोचा इससे भी हम लोग बेहतर को हॉस्पिटल को डालना चाहिए। लेकिन मैंगलोर में ये जो हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, हम उसको बहुत कोशिश किया, ये सही है ना, मतलब उनको पता नहीं है, हम लोग मेरा अब्बा मरेगा नहीं बोल के वो पता नहीं था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं बोल के वैसे ही वो सोचा था। लेकिन वो अब डॉक्टर से भी बात किया, डॉक्टर उसको बात करने के टाइम में मतलब उसको हार्ट बीट कम ऊपर नहीं आ रहा है, हार्ट बीट है ऊपर नहीं आ रहा है, वही हम लोग को बताया। हम रात भर सब उधर ही मीडिया वाला सब हम लोग को आके बात करें, हम लोग मीडिया वालों से क्या बात कर सकते हैं, हम लोग को उस टाइम पे बात ही निकल नहीं जाता है। क्योंकि दूसरा दिन भी हमारा भाभी का बेटी भी थी, बशीर भाई का बेटी भी था, उसका शादी भी नहीं हुआ था। बहुत उनका वो रो रहा था, सब घर में था। तभी रोने के टाइम में मीडिया में सब आ रहा है, मीडिया में आने के टाइम ये एक वीडियो आ रहा है जो मेरे भाभी पति का एक खून कर रहे, बेटी एक खून कर रहे, मतलब उसको नहीं देखना चाहिए था। उसको कोई लड़की लोग बोल दिया, ओ बशीर भाई का वीडियो आ रहा है बोल के वो लोग
रूम के अंदर से वो लोग भी बाहर आया, लेकिन उसको मालूम नहीं था। वो घर वाला भी उसको, हम लोग उसको बात करने के टाइम उसको रूम में थोड़ा उसको ये कर रहा था, लेकिन बच्ची लोग बोल दिया बाबा या बशीर भाई का वीडियो आ रहा है, और माँ और बेटी बाहर आके टीवी में देखने के टाइम अब्बा को ऐसा मारने के टाइम में क्या हो रहा है, वो उसको देख के उनको भी हाल नहीं हुआ। लेकिन 7 तारीख को सुबह उसको इंतकाल होता है। इंतकाल होने के टाइम में वैसे ही जमा होते हैं खट्टा, सब लोग खट्टा जमा होते हैं, बहुत भीड़ रहते हैं। हमारा डीसी साहब शशिकांत सिंदीप साहब था, वो अच्छे एक डीसी था उस टाइम पे। उन्हें हॉस्पिटल को भी आया, और दीपक राव को जब भी था वो उधर भी हॉस्पिटल को गया था। जब हम पुलिस वाला, हम लोग को भी मालूम था माहौल खराब हो जाएगा, बल्कि हम लोग को भी मालूम था, क्योंकि ऐसा ही होता है उधर। हम लोग उसको कैसे संभालेंगे, उसको कैसे हमको जनाजा करने का बोल के वो लोग, हम भी वही सोच रहा था। सुबह हुआ तो उनका छोटा बेटा भी, मैं भी आ रहा हूँ, मैं अभी नहीं रुक सकता है बोल के, उनको जान जाएगा बोल के उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो उसी टाइम पे निकलता था। जो जाके 3 महीने हुआ वो उसी टाइम पे मैं भी निकलेगा बोल के, वो उसको थोड़ा आने में थोड़ा हम लोग को थोड़ा देर हुआ, इसलिए थोड़ा जल्दी हमारा जनाजा हम लोग करता था। तब तक पुलिस वाला हम लोग आके ऐसे बोला माहौल थोड़ा खराब होएगा, आप लोग का ऊपर है, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा साथ देना चाहिए बोल के। ठीक है, हमारा वजह से हम लोग हमारा भाई को कत्ल किया बोल के, हम किसी को मारने के लिए हम लोग नहीं जाएगा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा इस्लाम नहीं बताए। इसलिए हम लोग, आप लोग को क्या करना चाहिए वो बताइए, हम लोग करेंगे। लेकिन बॉडी इधर ही हम लोग पोस्टमार्टम जल्दी कराएंगे, फिर इधर ही हम लोग का बॉडी को नाना ने कहे, लेकिन घर पे गए तो फिर भीड़ ज़्यादा हो जाएगा बोल के हम लोग को हॉस्पिटल में अरेंज किया। क्या चाहिए बोले पानी के इंतज़ाम भी सब अरेंजमेंट किया। फिर हम लोग को बोला भीड़ बहुत ज़्यादा है, इनका घर जो आसपास में बहुत हिंदू लोग का घर है, क्रिश्चियन का घर, सब लोग है। पुलिस वाले ने ऐसा बताया, आप लोग एक काम कीजिए, आपको जनाजा को घर में लेके जाइए, लेकिन ज़्यादा वक्त घर पे नहीं रखिए, आप लोग को मस्जिद है ना, आपको छोटा बेटा आने के टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर गए तो हम लोग को संभालने का नहीं होएगा बोल के हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट किया। हम लोग क्या किया, ठीक है आप लोगों को ऐसा चाहिए तो हम लोग वैसे ही करेंगे। तो जनाजा को घर पे लेके आया, सब बहुत भीड़ था, लेकिन पुलिस वाला हम लोग को एक रास्ता बताया, लेकिन लेके गए और एक रास्ते में, क्योंकि उनका सेफ्टी के लिए वो लोग वैसे किया होएगा। दोनों रास्तों को भी उधर आने के लिए बंद करके रखा है, उनको फैमिली वाला सिर्फ आने के लिए उधर सब छोड़ दिया, फिर लेडीज़ को सब देखने के लिए उनको इंतजाम सब किया है। फिर वहाँ के 1-2 घंटे उधर जनाजा था, 2 घंटे के बाद कम से कम दोपहर से 3 बजे तक हमारा मस्जिद है उधर, एक थोड़ा दूर में, एक उधर से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ मस्जिद पे लेकर जाके वहाँ मस्जिद में जनाजा रखा। जैसे उसका बेटा आने के लिए उनको इंतज़ार था। जो हॉस्पिटल में हम लोग बॉडी लेके जाने के टाइम में हम लोग को हमारा फैमिली में एक ही मैसेज दिया, मीडिया का हम लोग एक ही मैसेज दिया, जो हमारा भाई को कत्ल हुआ, हम लोग किसी को कत्ल करने के लिए नहीं जाएंगे, इसको जो बदले उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए तो ऊपर वाला ने उनको जो इंसाफ देगा वो इंतज़ार हम करेंगे, कोई किसी को कत्ल नहीं करने का बोल के हम लोग एक मीडिया को एक मैसेज भी दिया है। तो बॉडी को घर लेके जाके फिर मस्जिद लेके गए, मस्जिद में उसको छोटा बेटा आने तक इंतज़ार किया। बहुत भीड़ था, भीड़ उतना कैसे भीड़ था बोलते कम से कम 10,000 के आसपास ऊपर भीड़ ज़्यादा ही था। पुलिस वाला को भी कंट्रोल करने का नहीं होता था, क्योंकि उतना फोर्स भी उनके पास नहीं था। फिर उधर के सब मॉल के बाद उसका बेटा आया, उसका जनाजा सब किया। फिर पुलिस वाला आके हमारे से यही बताया हमको, अच्छी हम लोग क्या क्या सोचा था, मतलब
और भी दंगे होंगे, इसके माहौल और भी खराब हो जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग पहले से ऐसे ही सोचा था, किसी को मेरा भाई से दूसरा एक जान नहीं जाना था बोल के हम लोग का फैमिली का सबका एक ही मन था। वही उसका वजह से उसका आसपास हिंदू और क्रिश्चियन लोग घर भी आया था, उसको दफन करने मस्जिद तक आया था, सब लोग रो रहा था। बहुत से मीडिया लोग वही देख के मालूम पड़ा जैसे ऐसा एक आम आदमी को ये लोग खत्म क्यों किया बोल के सबको एक मतलब किधर बोलेंगे तो हमारा मस्जिद तक एक लेडीज लोग भी आया था, मतलब बहुत कम आता है हिंदू लोग। वो जनाजे के बाद वो लोग करने के बाद उनके साथ में बात से वो लोग रिटर्न गए। ये ऐसा एक माहौल की हमारे पास शब्द नहीं है, मतलब मैं जब आपको सुन भी रहा था मुझे यही नहीं समझ रहा था कि मैं आपको क्या बोलूं और आपसे क्या पूछूं, लेकिन बस यही कह सकता हूं कि हम सब हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम आपके साथ सहानुभूति में भी खड़े हैं कि आपके घर में और आपके साथ ऐसा हुआ। भगवान ना करे कि किसी के घर पे ऐसा हो, लेकिन जो संयम आपने दिखाया वो सचमुच में हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और एक बात, क्योंकि इतना एक अरेंजमेंट किया है कि आपको भी अब मैं धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इधर आने के बाद मेरे को पता चला है कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या क्या कैसे कत्ल होते हैं, कैसे इंसिडेंट होते हैं, कैसे मॉब लिंचिंग होते हैं। जब आने के बाद हम लोग को भी पता चला, जो इसको ऑर्गेनाइज किया, जो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये छोटी बात ही नहीं है। आप लोगों को भी फैमिली है, हमारा जैसे आप लोगों को भी फैमिली है, सब छोड़ के आप लोग पूरा इंडिया में घूम के ऐसा सब कर रहे हैं। भगवान आपको और भी कामयाब करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चीज़ और बस जोड़ना चाह रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद फिर गवर्नमेंट मोहम्मद की तरफ से हम उनके घर गए और बहुत ज़्यादा हमारी इज्जत बढ़ी। मैंगलोर बहुत अजीब सी जगह है जहाँ पे इस तरह का एक कत्ल होता है, फिर उसके रिवेंज में दूसरा कत्ल होता है, फिर उसके रिवेंज में दूसरे समाज का कत्ल होता है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिंचिंग्स इन द कंट्री इज़ इन दक्षिण कन्नडा बिकॉज ऑफ दिस। और उस सिलसिला को इनके परिवार ने रोका। बस यही कहना चाह रहे हैं।